हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप लोग? हाउ इज लाइफ? हैंगओवर ओपी? नहीं मैं, अच्छा हैंगओवर ओपी अभी तक आया नहीं है वैसे, जिस शख्स की आप बात कर रहे हो। जहर ओपी भी आ गया, चलो मस्त है। WFH के साथ देखना था, रिलैक्स करने आई गेस, काम कर लेना ही बेटर होगा। कर लो काम यार, काम भी कर लो, ये भी देख लो, क्या प्रॉब्लम है? मल्टीटास्किंग इज द की। लेट लतीफ ओपी यार, आज बस 4 मिनट लेट था मैं। So I have lots of excuses for my behavior. Thanks to everybody joining in. Too late OP, Vikash, Pal. Welcome to all members. Welcome to late OP, late IOP. ये कुछ और ही है नया। विशाल गुप्ता, अबे टकले हमें उठाकर खुद ही नहीं उठा। नहीं रे, मैं तो 8 बजे से उठा है। मेरा कमरा तैयार नहीं हुआ था, बिकॉज आई हैव 7 स्पेशलिस्ट वर्किंग ऑन माई रूम टू ब्यूटिफाई इट। एज यू कैन सी, मैं हर सुबह इस कमरे को 7 लोगों से साफ करवाता हूँ। एनीवे, गंजा ओपी, आई ऑलवेज रीड दैट एज समथिंग एल्स ओनली। Okay, just a couple of things. First of all, I hope everybody enjoyed. जिन लोग ने मतलब कल वाला ओपन माइक देखा, I hope you had fun. Members के लिए था, बहुत मजा आया कल. I thanks a lot for everybody who showed up. In case you aren't aware, our membership has started on the channel. मैं एक बार उसके बारे में थोड़ा बता दूं लोगों को, ताकि मतलब we get more money. 3 levels of membership. One level is the basic level, where you can just support this channel by having emojis and क्या होता है उसके बगल में, क्या होता है यार, क्या होता है? Brands नहीं, what is it? Tokens? What happens next to your badges? You get badges next to your name. That's level 1. Level 2 is you get same benefits of level 1, और उसके ऊपर you get one YouTube live with members, which will be fun. And then besties is level 3, जहां पर हर महीने 2 open mics होंगे. And this month, since it's the first month, we have done a total of 1 open mic already. अभी 2 बाकी हैं. And members get tickets for Rant of the Pant and Traveling Pants, जो शोज है. तो इस महीने मतलब बहुत बेनिफिट्स है वो सब करने का. How to become a member? You can just see a join next to the homepage. या इस वीडियो में भी दिखा रहेगा, but only I think usually on laptop. तो जाके बन जाओ members. राहुल चंगानी is a member. जनता लाइक करो, अब शुरू भी हो गया. जनता लाइक करो. काजोल is on the ball. Just want to thank a few people who donated on InstaMojo. Rupa S. Math gave for the Manu S. Pillai podcast. Thanks a lot. काफी फन पॉडकास्ट था वो, जाके सुन लो अगर या देख लो अगर देखा नहीं है. Rahul gave money for happy birthday Saurabh. Thanks man, I appreciate it. Pranav Agarwal, incredible Manu Pillai episode. Thanks man. अगर आप लोग को मनु पिल्लाई कौन है नहीं मालूम, तो प्लीज जाके देख लो. He's a historian and he basically spoke about 2 hours 20 minutes about Indian history and all that stuff. तो काफी interesting था वो सब. So that's InstaMojo. Then Vinod has given saying support his noble cause. How sweet, yeah, what a nice guy. And Monish has given saying just simply appreciation. I also appreciate you, man. You're a nice guy. Thanks a lot. So thanks a lot to all those people on InstaMojo. PayPal भी है, अगर आप मतलब abroad या कुछ हो, you can easily donate on PayPal also. Please give round of applause. I'll introduce my guest. One of the leading chiropractors in India. He's won awards globally for being a chiropractor. He won the Nobel Peace Prize for chiropractic. Gaurav Gupta is here. Hi, Gaurav Gupta. कैसे हो आप? Gaurav Gupta. Asked to start video. नहीं, जरूरत नहीं है. कैसा है यार? हाय, क्या हालचाल भाई? अरे तू तो बहुत सोबर है यार सुबह. हाँ. You look like you're ready for a tuition class right now. एक्चुअली मेरे ना सारे कपड़े प्रेस के लिए गए हुए थे, तो एक ही बची थी शर्ट. सारे कपड़े प्रेस के लिए गए हुए, तो कुछ था ही नहीं पहनने के लिए, तो जो बची हुई थी वही मैंने पहन ली. नहीं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इधर यू आर द टीचर ऑफ द ट्यूशन क्लास और द स्टूडेंट, दोनों चलेंगे. नहीं, मैं टीचर लग रहा हूँ, वो सस्ते वाला नहीं होता, 150 रुपए घंटा वाला. और जो 150 रुपए घंटे में जिसको पढ़ा रहा था, उसके तो सवाल सॉल्व करते ही उसके भाई बहन भी ले आते अपने प्रॉब्लम से कि सर 1 घंटा तो ये भी बताओ प्रॉब्लम. मेरे एक वीडियो पे बहुत लोगों ने लिखा कि ही लुक्स लाइक अ फिजिक्स टीचर. फिजिक्स टीचर? हाँ, पता नहीं फिजिक्स कहाँ से लग रहा हूँ, मैं फिजिक्स पढ़ाऊंगा. या तो फिजिक्स की बात, मतलब टॉकिंग अबाउट बीइंग अ गुड स्टूडेंट, लेट्स ब्रिंग ऑन नंबर 1 स्टूडेंट ऑफ इंडिया, वन ऑफ द वोटेड रिपीटेडली नंबर 1 स्टूडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम her school days to now.
by the Billboard Commission of Students. Shrija Chaturvedi. Hi, Shrija Chaturvedi. Thank you. Hey, good morning. Good morning, yeah, Shrija. Hi. Yes. Hello. Yeah, मैं रही तो काफी good student. Thank you for that. Most amazing introduction. But okay, so what I want to know, Shrija, is what kind of teacher is Gaurav Gupta looking like? Physics तो नहीं, I think. मैं कैसा टीचर? More of biology मुझे तो लगता है. चश्मे biology वाले. अच्छा, बायोलॉजी में दो आते हैं, बॉटनी और ज़ूलॉजी. कौन सा वाला लग रहा हूँ? नहीं 9-10 में तो एक ही होती है बायोलॉजी, जिसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी सिखाते हैं. मैं बोलता हूँ कि बच्चों के लिए मेंढक इकट्ठे करके लाता काटने के लिए. एक लैब असिस्टेंट होता है ना, डाइसेक्ट किया था क्या? आई हैव नेवर डाइसेक्टेड अ मेंढक. मैंने चूहा किया है. मैंने चूहा किया. तो वो 9-10th में ही हो जाता है क्या? हाँ, तो उसमें एक प्लैंक देते हैं आपको, उसमें चूहे 4 क्लिप्स देते हैं. सॉरी, ये थोड़ा सा रहने दो, मूड खराब रहेगा समझ. अरे मतलब चूहा काटे मैंने, 2-3 चूहे काटे. कटवाते हैं, क्या करें, पास होने के लिए करना पड़ता है वो. बट ये डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए था या ये 11th? नहीं, ये 11th-12th में था. तब मैं 11th में था. 2000 में था मैं. तब काटे आते थे चूहे. फिर उसके बाद फ्लैट डाइसेक्शन पे आ गया था. वो मना कर दिया था मेनका गांधी ने ना, तो फ्लैट डाइसेक्शन होने लगा था बाद में. वो मेंढक चूहे सब हटा दिए थे. Wow. In case you want to operate on flowers later in your life. अरे एक बार तो क्या हुआ, मैं तुम्हें बताता हूँ. वो जैसे तो एक लड़की थी, थोड़ी घबराती थी हमारी क्लास में. तो उसको जो चूहा दिया ना, वो एक्चुअली फॉर्मलिन के सॉल्यूशन में डिप करके रखते हैं, उनको बेहोश करके रखते हैं चूहों को. तो आई थिंक उस पर पूरा असर हुआ नहीं था चूहे पे. तो वो यूं लेटा हुआ चूहा, ठीक है, बोर्ड पे, एंड सडनली वो लड़की जो भागी है. किसको होश आ रहा है? पेशेंट को होश आ रहा है. पेशेंट की किडनी निकाली जा रही थी, पेशेंट को होश आ गया. जो भागे भाई, ऑब्वियसली किसी भी फट जाएगी यार. हाँ, वो उसको पूरा बेहोश हुआ नहीं था, क्योंकि वो सिर्फ आपको डिप करने से जितना आप एनेस्थीसिया दे सकते हो दे दो, तो ज्यादा तो बेहोश हो ही जाते थे. वो थोड़ा मोटा चूहा था, नहीं हुआ. वो उठ गया साला, जैसे कट मारा. Oh shit. See, this is why anesthesiologists are so important. मतलब Yes. he must have given local anesthesia, not general anesthesia. हाँ, तो सर्जरी में तो मेन चीज ही एनेस्थीसियोलॉजिस्ट होती है. अगर वही ढंग से नहीं हो तो बस गया यार. पर हमें कभी ऐसा, मुझे कभी किसी ने बोला नहीं कि भाई इसको डाइसेक्ट करो. आई नो श्रीजा आल्सो इज सेइंग कि नहीं हुआ. तो व्हाट इज द स्कूल वेयर यू आर डाइसेक्टिंग मेंढक्स एंड चूहास? नहीं, मैं बायोलॉजी थी ना मेरे पास 11. नहीं, मेरे पास साइंस लेके बायोलॉजी थी सर. तो उसमें फिर कटवाते हैं फिर चूहे, और मतलब उसके बाद बंद हो गया था 2 साल बाद. तो फिर फ्लावर पे आ गए थे, फ्लैट डाइसेक्शन. उसमें स्टिग्मा और वो सब चेक करते थे, पेटल्स, फिर वो सब जो थे. वो तो हमने वो मेनका गांधी ने बंद कर दिए थे, क्योंकि वो मास पूरा वो स्कूल्स ना स्पेशली चूहे पकड़ के ले जाते थे, और फिर फॉर्मलिन में डुबा के बच्चों को देते थे काटो. और बच्चों को बड़ा लगता था हम सर्जन बन गए थे चूहा काट के ना, एकदम बाईपास ही कर दिए थे. बड़े वाओ यार. पर ये फ्लावर का मुझे समझ में नहीं आ रहा. मतलब यू डाइसेक्ट अ फ्लावर, व्हाट इज द साइड? बट ये एक्चुअल को सर्जरी सिखाने के लिए थोड़ी ना चूहा काटा जाता है. नहीं, ये एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ. हम लोग जो है ह्यूमन बीइंग्स, होमो सेपियंस, और जो रैट्स हैं, वी बोथ आर मैमल्स. मतलब जो जानवर की कैटेगरी होती है, वी आर मैमल्स बिकॉज़ वी हैव मैमरी ग्लैंड्स. तो हमारा जो सिस्टम है ना, उसी का मिनिएचर फॉर्म चूहे के अंदर होता है. तो हमारा जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम आपको दिखाना, तो हार्ट उनका भी हार्ट वैसे ही होता है. 4 चेंबर का हार्ट होता है. हार्ट दिख जाएगा आपको, इसोफेगस दिख जाएगी, इंटेस्टाइन दिख जाएगी, फैलोपियन ट्यूब दिख जाएगी, ओवरी दिख जाएगी. तो वो बेसिकली एक उसको समझाने के लिए वो करते थे डाइसेक्शन, ताकि आप लोकेट कर पाओ और वो कुछ कर पाओ, उस पर नोट्स लिख पाओ. तो वो इसलिए करते थे क्योंकि हमारा और उसका सिस्टम ऑलमोस्ट सेम ही रहता है अंदर से. बट वो बस चूहा है और हम इंसान है, क्योंकि बिकॉज वी हैव मल्टीपल, उसका ऑर्गेनाइजेशन लेवल जो है हमारा वो थोड़ा हायर है. लेकिन वी रैट्स, बैट और जितने भी वेल इनफैक्ट इज अ मैमल. तो हम सब मैमल्स में ही आते हैं ना, सारे एप्स वगैरह सब मैमल्स में आते हैं. तो कभी वेल का डाइसेक्शन किया है क्या स्कूल में? जो भी अंडा नहीं देता ना, वो मैमल है. यार हम इतने भी बेवकूफ हैं कि इतना
गौरव कुछ एक्स्ट्रा वो इन्फॉर्मेशन मुझसे बता, हम मैमल्स हैं इतना तो बताया। आपके घर वेल क्या? नहीं, वेल का डायसेक्शन किया गया कभी स्कूल में? I'm just trying to figure out the school of yours जहाँ पर सब चालू है। मैंने वेल देखी नहीं आज तक, पता है? वेल तो आई थिंक शुक्र मानना चाहिए कि नहीं देखी है। तूने देखी है? नहीं मतलब नहीं ऐसे, देखी भाई। ऐसे ट्रैवलर भी नहीं देखी कि वो जाते ना जैसे, उसमें भी नहीं स्कूबा देखी। डाइविंग के लिए नहीं, स्कूबा डाइविंग के लिए या कोई म्यूजियम वगैरह, उसमें भी म्यूजियम में तो नहीं होती वो, जो एक्वेरियम, सॉरी म्यूजियम कह रहा हूँ। वेल तो नहीं, छोटी वो शार्क्स टाइप, शार्क हाँ, वो फिश तो वाली देखी है। वो रहती है। शार्क्स तो देखी। वैसे सुजीत कुमार has given a super chat saying काफी critical IPL facts। चूहे कट रहे हैं यहाँ पर। We'll come to it eventually यार, क्या जल्दी क्या है? But मैं नेपियन से रोड में रहता था मुंबई में, तो वहां पर there's a place called प्रियदर्शनी पार्क which is right next to the sea। तो वन डे मैं अपनी बैल्कनी में गया and it was like far, literally प्रियदर्शनी पार्क 1 किलोमीटर दूर है, ठीक है, समुद्र यहाँ पर है, 1 किलोमीटर दूर मेरा घर है, and you can smell fish का smell। और कभी आती नहीं थी वहां पर, तो हम लाइक व्हाट द फक इज हैपनिंग। तो मैं गया वहां पर एंड देयर इज अ व्हेल व्हिच इज बीच्ड देयर, और लोग तो उस टाइम पे किसी को, हाँ, लाइक अ स्मॉल व्हेल, आई डोंट नो वेदर इट्स अ व्हेल टेक्निकली, समबडी इन द चैट विल प्रोबब्ली टेल मतलब लार्ज फिश कोई, हाँ, पर पता नहीं, आई थिंक इट वाज अ व्हेल ओनली, आई थिंक लाइक अ, यू माइट बी राइट, कोई लार्ज फिश भी हो सकती है। तो वी वर देयर, और लोग मतलब उस टाइम पे तो किसी को आइडिया नहीं था कि भाई इट कैन एक्सप्लोड बिकॉज ऑफ ऑल द गैसेस स्टोर्ड इनसाइड एंड ऑल दैट शिट, वो तो वी हैड नो इन्फॉर्मेशन। तो लोग मतलब उस पे चढ़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, and it's like badbudar and it's just weird. So that's the one time I've seen a whale. Does anybody know whether it was actually a whale or no? So yeah, फट जाती है, they have gases inside, no? So when they फट emerge जाती from है, the, मछली फट गई। हाँ नहीं, तो the reason you have to stay away from a whale, जब वो बीच हो जाती है, you have to stay away for the first 24 hours or something, because apparently the gas is stored inside, और वो गैस जब बाहर निकल आती है then it explodes. It's like the same as the human body, but because you, वो pressure का difference रहता है ना from the ocean or whatever. I might be getting all the biology and the facts completely wrong. Basically what happens, ऐसा लग रहा है हम तीनों नेट जियो के लिए आए हैं अभी। वही मुझे प्रियदर्शनी पार्क से सेगवे हो जाएगा क्रिकेट में, बट व्हेल की बात रही। तो प्रियदर्शनी पार्क में हम लोग कभी क्रिकेट नहीं खेलते थे, so talking about cricket, yes, whale explodes. डी संदीप भी बोल रहा है, अपूर्व गुप्ता भी बोल रहा है कि yes it was a whale। सब कंफर्म है। अच्छा, अपना अपूर्व गुप्ता नहीं, कोई और एक्चुअली ऐसे बहुत आ जाता है। एक बार बॉम्बे के जूहू बीच पे आई थिंक कोई शिप आकर रुक गई थी, खाली शिप थी या पता नहीं क्या थी, बट शिप आई थिंक 1 महीने तक थी वो बस जूहू बीच पर। लोग फोटो खिंचाने आए थे फिर बहुत। सी हॉन्टेड होगी वो, अभी उसमें मूवी बनी है ऐसी, उसका भी यही स्टोरी थी। भूत 2 आई थी ना, उसमें भी यही स्टोरी थी। Okay, by the way, just a lot of people asking in the chat about Bassi. यार Bassi is not woken up yet. वो उठ जाएगा, तुम टेंशन मत लो, वो आ जाएगा। कोई Bassi will always come, but he'll come like when he wakes up. देखो वैसे भी चूहे कटने की बात हो रही है, बस्सी के बाप को भी समझ में नहीं आएगी। बेचारा, उसको अच्छी बातें सुनने तो सुबह उठते चूहे काटवा दिए, बताओ, तो आ जाएगा बस्सी। बस्सी पता है इतना अच्छा आदमी है, मैं पता है मेरे एक रिश्तेदार की याद दिलाता है। अर्जुन चाचा मेरे थे, तो वो मैं सुनने बुरा नहीं आएगा, अच्छा आएगा। तो बस्सी मतलब बेचारा इतना भला आदमी है, सबकी स्ट्रीम पे चला रहता है। तो मेरे को ना अर्जुन चाचा की याद दिलाता है। वो क्या थे, वो पहले नॉर्मल कमाते थे, फिर उनका चावल का कुछ बिजनेस बहुत तड़ा फट गया, मतलब बहुत ही खतरनाक, उन्होंने छाप लिए पैसे, और सारे लोग जितने भी हमारे रिश्ते में थे ना, वो अर्जुन चाचा को बुलाना चाहते थे अपनी शादी में। तो टेंट की शादी हो, कम्युनिटी हॉल की शादी हो, बैंक्वेट हॉल की शादी, वो बेचारे हर शादी में आते थे। उनके अंदर घमंड ही नहीं था। वो एक अमीर रिश्तेदार नहीं होता जिसको अलग से थाली, जो जाता नहीं, जो आ गए, अरे अर्जुन जी आ गए, अर्जुन जी आ गए यार। ये तो मेरे अर्जुन चाचा का वो हाल था। वो सबसे अमीर था हमारे पूरे रिश्तेदारी में, जिसने कुछ कर लिया था जिंदगी में। तो वो बेचारे फिर भी लेकिन हर किसी की शादी में आते थे और मोटा गिफ्ट देके जाते थे। तो बस्सी वही है, बेचारा सबकी स्ट्रीमिंग पे चल रहा था। वो मोटे सुपर चैट्स लेकर आता है। हाँ। एंड में तो कॉम्प्लीमेंट ही दिया, he said you are a nice person basically। ये तो अच्छी बात है। घमंड नहीं है बस। मैं अगर होता मैं नहीं आता, मैं नहीं आता। वैसे बस्सी, are these awards at the back award? क्या सर? ये तेरे पीछे जो अवार्ड्स वगैरह हैं क्या सारे?
कुछ नहीं है सर, ये वो है एक प्ले बटन है, एक टेडेक्स वाला है, बाकी बुक्स और वो है जो लोगों ने वो बना के भेजे हैं स्केचेस। ये मुकुंदन सर ने मुझे आपकी स्ट्रीम पे तो बोल दिया था कि बस ये ऐसा लग रहा है जैसे उस पे बैठा है पासपोर्ट की दुकान में, तब बनवाई है मैंने दीवार ये। पिछली बार नहीं बोला था आते ही। ये मानव क्यों कॉल कर रहा है? अमानव Manav is not updated with anything right now. Manav is like, बस से अभी तक नहीं आया. Manav, I know that there's a slight delay in the thing, but इतना भी ज्यादा नहीं है. अच्छा, वॉल्यूम का प्रॉब्लम है क्या? क्या हो गया? मेरा ऑडियो कम आ रहा है? नहीं, थोड़ा सा, इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। मैं तो माइक पे ही बोल रहा हूँ। I think वो settings में जाना होता है। Oh, by the way, there's more super chats coming. Somebody is saying that Shrija is their crush and all these kind of things are happening. और श्रीजा, जहर उगलने को तैयार हो तुम सुबह? क्या? जहर उगलने को तैयार हो सुबह? भाई राहुल दुआ को तो जो इसने हंटर मारे हैं सही में यार, ये गलत है। इन लोग ने भी मारे थे यार, बहुत गंदे मारे थे। नहीं श्रीजा, तूने अलग ही जो ब्रह्मास्त्र चलाया ना तूने, गंदे हम सब ने उसको थोड़ा सा एक काम की तरह लिया था। श्रीजा सो पंजाबी प्रॉपर काम ली थी। हाँ, वो रिबन वाला तो बहुत ही गंदा था। अरे यार, मानव बेटर होगी भाई, मैसेज कर दे। हाँ ठीक है, मुझे तो बेटर लग रही है पिछले। मेरे को सही आ रही है इसकी आवाज तो, बस नहीं इससे ज्यादा कुछ हो भी नहीं सकती, तो अब कुछ होगा भी नहीं। मैंने माइक लगा रखा है यार। सही आ रही है माइक, प्रॉपर माइक, ऐसा टाइप का। ओहो वाओ, उससे ज्यादा क्या लोगे? हाँ वाओ। Are these for Zoom shows and all? नहीं यार, ये नॉर्मल उसके लिए नहीं, मैंने बस रोहित भाई से बोला था तो वो देके चले गए, उनके पास पड़ा बोला। क्या? मैंने एक दो कॉर्पोरेट शोज किए थे ना बीच में, तो उनके लिए जरूरत पड़ी थी। ओह नाइस। He says and then drinks his coffee very nonchalantly, like हाँ मिल गए दो corporate shows, like mic free and all. I see the style, yeah, it's very classy. But Shreya, I gotta ask you, so when you're writing a roast for somebody, like what is your like what do you research? Because I think sometimes you come out with bits where you are like, ये कहाँ से आया? Like I remember when you said, what is that line about Rahul Dua saying that Indian comedy is some, क्या था? 40 years. हाँ यार ऐसा तो कुछ है नहीं, मतलब बस बैठ के गूगल सर्च ही मारती हूँ, फिर 5-6 पेजेस तक जाती हूँ सबके इंटरव्यूज देखने के लिए। Nice. बाकी कुछ नहीं, फिर नॉर्मल स्टीरियोटाइप्स वगैरह ही डाल दिए। और इन्होंने भी मारे थे यार बहुत बुरे, वो उन्होंने काट दिए। मैंने पूरा देखा था तेरा रोस्ट, जो तूने किया था ना दुआ के साथ, बहुत गंदा था वो। नहीं वो बक्स बनी दांत वाला, तो भाई क्या था वो वो अपनी पंच लाइन को तरफ और बोल भी धीरे रहती है, राहुल दुआ has got bugs bunny teeth, that's why अपनी पंच लाइन को तर देता है। इतनी धीरे बोलती है, बेइज्जती डबल लगे साली सुन के। और राहुल दुआ ने सुनी नहीं वो, और फिर बस उसको बोला मत सुनियो भाई। दुआ का पता नहीं नेट की लो था क्या था, दुआ ने सुना नहीं वो रोज। शायद वही मैं घटिया ही इंसान हूँ शायद, इसलिए निकलता है। नहीं बहुत सही। ए बाय द वे, किसी का प्रपोजल आया, अक्षय कलबा का प्रपोजल आया कि स्टार्ट अ क्रिकेट टूर्नामेंट फॉर कॉमिक्स। यार दिस शुड हैपन, आई एम वेरी हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ अ क्रिकेट टूर्नामेंट। मी टू। होता तो था पहले, मतलब जब खोली हुई थी मुंबई में खेलते तो है लोग। हाँ मतलब टूर्नामेंट होता है, ऐसे मजे के लिए खेलते थे सब लोग। हाँ, टूर्नामेंट विल बी फन। बसी तू, what is your skill set in cricket? कुछ भी करा लो सर, परफेक्ट किसी भी चीज में नहीं है, बाकी क्लिक किसी भी दिन किसी में भी कर सकते हैं। अभी दिल्ली में एक बार मैच हो रहे थे, यहाँ पे तो मैं चला गया था खेलने, बनीत वगैरह खेल रहे थे, तो मैं विकेट कीपिंग करने लगा, मैंने डाइव मार के कैच पकड़ लिया, तो सब कह रहे तू हिलता भी है। मैंने कहा हाँ कभी तो हिलते ही थे ना, अब नहीं लगता होगा, देख के क्या मन नहीं करता। ये बसी पता है विकेट कीपर के लिए क्या जरूरत है कि उसकी लंबी फिंगर। बसी अपना हाथ दिखाइए जरा, हम रिजॉर्ट में मैंने इसका हाथ देखा, ये देखो, वाओ। नहीं इसका ज्यादा लंबा है, मेरा काफी लंबा हाथ है। हाँ ओके, इंटरेस्टिंग। आपका बस उतना ही बड़ा है, इतने में गड्डी आ सके। यार चिल्लर की टिकट नहीं बढ़ती है तो हाथ बड़ा है थोड़ा। क्या कह रहे हो?
आप कुछ बोल रहे थे? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि डिड यू बोथ प्ले क्रिकेट, श्रीजा एंड गौरव? नहीं, मैं क्रिकेट नहीं खेल, मैं तो वही प्लास्टिक की बॉल, कॉस्को की बॉल, बस। मैं लेदर की बॉल तो खेलता नहीं था। मेरे को एक बार पेट में लग गई थी, फिर उसके बाद मैं फिर फट गई। लेदर की बॉल बड़ी खतरनाक आती थी भाई, सीधी। मुझे एक बार पेट में लगी थी। हाँ, मेरे पेट पे लग गई थी, मुंह पे लगी थी लेदर की बॉल। ये डेडिकेशन कितना बढ़िया होता है, लेकिन कि एक बार लग गई थी तो दोबारा कभी देखा ही नहीं उसकी तरह जिंदगी में। डूड, मैं एक बार पता नहीं, हाँ नहीं, गो अहेड श्रीजा। हाँ नो वो हॉकी की बॉल थी, हम हॉकी की बॉल से खेल रहे थे। हॉकी, अच्छा, वो कॉक बॉल के साथ क्रिकेट खेल रहे थे। हाँ, दैट मेक्स सेंस। ये सबने ट्राई किया एक बार, एंड देन यू वेरी क्विकली रियलाइज कि इट्स वे टू हार्ड, गलत है, मत करो। हमारे कॉमिक्स में बस से कोई अच्छा क्रिकेटर है वैसे जो अच्छा खेलता हो? जो काफी सारे हैं सर। कौन ठाकुर इज देयर। मुझे दिल्ली वाले पता है। हाँ, दिल्ली में कौन है? दुआ बहुत अच्छा बॉलर है। हाँ, दुआ तो है। और सूरी भी ठीक ठाक खेल लेता है। और आकाश गुप्ता भी है। गुप्ता अच्छा खेलता है। ये आकाश गुप्ता शायद बैटिंग है, नहीं बॉलिंग करता है ना वो। ओमकार काफी अच्छी बैटिंग कर लेता है। ओमकार खड़े खड़े छक्के मारता है, वो गांव का लड़का तो है ही ना, वो वाला जो वो 10 रुपए पे छक्का नहीं मारता गांव में जो लड़के होते कोई वही वाला है, जिन्हें बुला के लाते हैं अलग से कि पिंटू भैया आप ओपनिंग कर लेना। वो वही वाला है, तो वो तो कर लेता है बढ़िया। बाकी सुमित अच्छा खेलता है, सुमित भी खेल लेता है। काफी सारे सुमित, सौरभ, आनंद आनंद काफी सारे लोग हैं। मैंने भी 1-2 कैचेस पकड़े हैं लाइफ में, ऐसा नहीं है। टिंडर पे तो हम लोग मुंबई में खेल रहे थे, तो द फर्स्ट 5 times we were playing, no, the first time I was playing, I was like, चलो मतलब like East India Comedy will play together, and Kunal Ragut मतलब ठीक ठाक खेलता है, Azim plays okay, and Atul, I think that time his paunch was so big that he couldn't hold the bat properly. और funniest was Sahil Shah and Sapan Verma. Like I don't think उन लोग ने कभी लाइफ में मतलब कुछ भी फिजिकल किया हो। लाइक सपन वाज बॉलिंग, ठीक है, हम रबर पावर के साथ खेल रहे थे, उसने बॉल डाली और मेरी बिल्डिंग के बगल में हम लोग खेल रहे हैं, the ball goes while he was bowling to the 3rd floor. I've never seen anyone do this in my life, where literally ऐसे कोई डाला और it went to the 3rd floor, and we were like, ये कभी मैं क्रिकेट 12 साल से खेल रहा हूँ, I've never seen anyone do this. So, but मुंबई में I think ठाकुर तो मतलब क्या, I think he was playing कुछ तो he was Ranji Probables or something in Mumbai, no? Yeah, something like that he was. सुना है। ठाकुर plays well. और कौन था यार, कोई तो आई थिंक ऑल मुंबई में जो लोग मतलब असिस्टेंट डायरेक्टर्स या डायरेक्टर्स होते हैं OML के, वो पूरे उसमें those guys play better than most of the comedians. So that's great. विश्वास भाई बहुत तगड़ा खेलता है यार, वो जाकिर भाई के जो दोस्त है ना विश्वास भाई। हाँ वो बहुत तगड़ा खेलता है, इतनी तेज बॉल फेंकता है वो आदमी को, जब रन प्लेयर होता है तभी मैं तो गिव अप कर देता हूँ कि नहीं रहने दो, नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। ये तो चौबे खेलता क्या? चौबे खेल पाता क्रिकेट? हाँ चौबे जी खेलते हैं, चौबे जी खेले थे हमारे साथ, फील्डिंग कर रहे थे उनके। चौबे को नहीं लगता इसका बैट छीन लेते थे? चौबे जी फील्डिंग कर रहे हैं और उनका ट्राउजर फट गया। और उसके बाद सबसे कह रहे हैं कि ट्राउजर दे दे। अरे किसी का भी थोड़ी ना आ जाएगा, सब क्या कह रहे हो? नहीं, पर फील्डिंग करते समय कैसे फट गया? वो कुछ डाइविंग कैच लेने की कोशिश कर रहा था कि ऐसे ही हो गया? नहीं, वो पैर से रोकता है ना बॉल। नहीं, वो बस पैर खोल के तैयार हो रहे थे कुछ करने के लिए। और काफी प्रोमिनेंट था वो, सबको आवाज आई, दूर दूर तक जो खड़े थे सबको आवाज आ गई। I'm just predicting this. That's why it's even funnier, because like to imagine Pratyush doing anything physical is always hilarious. कर लेना ना, थोड़ी देर बाद ऐड कर लेना पिछली बार की तरह। हाँ, प्रत्युष को कर लेते हैं। और कपूर, गुड मॉर्निंग। Hey guys. Hi guys. भाई मैं तो सारी स्ट्रीम देखता हूँ और सब स्ट्रीम में जो मैं हर स्ट्रीम में घुस रहा हूँ, मैंने नोटिस कर लिया। मैं सबको मैसेज करता हूँ प्लीज मेरे को ले लो, मैं बहुत बोर हो रहा हूँ। थैंक यू सौरभ फॉर बीइंग सच अ जेनरस होस्ट कि शो के बीच में आपने बुला लिया किसी को। आजा काली, ना बिंदास, क्या है? आजा काली है तो आजा।
I'm going to do some a couple of super chats. अभी भी लोग ये सुपर बात- चैट दे रहे हैं इस कॉन्वर्सेशन के अरे लिए भी। पता नहीं यार, पुराने वाले हैं, and then people start complaining कि भाई तुमने मेरा सुपर चैट पढ़ा नहीं है and all this nonsense. So वो I'm तो just gonna करेंगे ही, read कोई like पैसा दे रहा है, उसका सुपर चैट का फॉर्मेट अर्जुन भाई सही है. You're correct यार, you're correct. पढ़ तो लो यार, मैं पढ़ just लो। give me 2 minutes. I will just read these. Amandeep का तो हो गया. Nikhil Mahesh says Bassi came and became odd one out. It seems Saurabh calls in people knowingly who have gap between their teeth so he can feel part of a group. श्रीजा का भी है क्या? हाँ श्रीजा का भी Oh shit, dude. सबका ये मिडलैंड डायस्टी में बहुत कॉमन है, हम सब हमारा इसलिए तो पैसा- What कपूर is होना it's है. called mid-stemma or something. मिडलैंड डायस्टी Diastem. Diastemma. ये तो इसका इसके बारे में हाँ. मेरे भी कुछ वो होता है क्या, क्योर वगैरह? इसका बोला क्योर- जाता है braces there is a clinic in Delhi Okay, I'll get in touch. and we treat Yeah. only celebrities, so Oh no. साले shows नहीं हो रहे हैं, गुप्ता अपने आप को बेचने आ गया डेंटिस्ट। अभी बता रोहित भी आने वाला है, रोहित भाई, गुप्ता यहाँ पे मैं ऐड भी very- तो आने वाला हूँ, मुझे भी तो आना है। सब रोहित आ रहे हैं। गौर, हाँ बस्सी तो ये थोड़ा बस्सी का नहीं, मैसेज है मेरे how पास। बस्सी मुंबई में कोई शो कर रहा है, इसका शो हाउस सोल्ड आउट वगैरह सब कुछ। बस्सी ने मुझे फोन करा, मैंने कहा बस्सी को क्या जरूरत पड़ गई मेरी? बस्सी कह रहा है भाई पूरी टंग छिली पड़ी है दांत से, क्या करवाऊं? अभी तो मैं दांत निकलवा, टूट गया यार रात को। तो मैंने कहा अभी तो निकलवा नहीं सकता, तो मैंने कहा भाई तू कहीं से थोड़ा स्मूथ करवाया। कह रहा ऐसे हो जाता है, मैंने कहा तू बोल दे बस कि मेरे एक जानकार डेंटिस्ट है, उन्होंने बोला, तो फिर इससे कर दिया। चल बहुत सुकून मिला था यार वाह। उसने, जैसे करा एक सेकंड में उसने कर दिया। मैं कहा यार बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। नहीं पर क्या किया उसमें? अरे वो राउंड ऑफ कर लेते हैं, वो शार्प एजेस निकले होते हैं, दांत जब दांत टूट जाते हैं ना, उसके शार्प एजेस चुभते हैं टंग में। तो उसका शो था, तो उसको दिक्कत हो रही थी बोलने में, तो फिर मैंने इसको बोला कि अभी निकलवा मत, नहीं तो तू शो ही नहीं कर पाएगा, तो राउंड ऑफ करवा दे उसको। तो ये राउंड मुंबई ऑफ में में मतलब था। क्या स्क्रैप करते हैं क्या उसको अंदर जाके? नहीं उसको थोड़ा सा लेवल कर देते हैं, बेवलिंग कर देते हैं, मतलब थोड़ा सा जैसे यूं ऐसे चोचीला का टाइप का है, तो उसको ऐसे बेवल जो चीला। उसको पूरा बेवल कर देंगे। मैंने राउंड ऑफ बोल दिया, सब ट्रिम बोलते हैं, मेरी ये क्या होता है? मैंने कहा लो सुनो चोचीला, तुम चोचीले भाई मैंने गुप्ता को देखा था एक बार उसके ऑफिस जब मैंने पता क्या किया, अच्छा ये कहानी सुन लो। ये एक बार राहुल दुआ आया मेरा पेशेंट बन के, तो राहुल दुआ को मैंने राहुल दुआ की रूट कैनाल कर रहा, पेशेंट जो बन कि के फेल हो गई, मैं पहले बताया था। तो मैंने राहुल दुआ को इंजेक्शन दिया, पूरा सुन हो गया यहाँ से यहाँ तक। तो राहुल दुआ करवा तो लिया, फिर कह रहा अरे भाई मेरी डेट है इसके बाद। तो मैंने कहा अब तो तेरे को आज कुछ फील नहीं हो ना ऑटो पे, भाई मैं बता रहा हूँ तेरे को, तू आज सुने लाश की तरह पड़ जाएगा तू। कार्ड भी देगा ना तभी भी नहीं बोला, पूरा ऐसा भारी हो गया, पूरा सुन कह रहा भाई कुछ पता नहीं चल रहा, कह रहे डेट खराब। और वो डेट के लिए लुधियाना से दिल्ली आता था। दुआ बेचारा कह रहा यार बता तो दे, कह रहा पूरा ही सुन हो गया। ये कपूर पर के तुमने बता अपना कभी सोचा नहीं है क्या ये क्या अपना खुद का दांत का वो करने का? मैंने अरे ब्रेसेस होता है इसका ट्रीटमेंट, ब्रेसेस के लिए फिर पूरा साल आपको देना पड़ेगा, एटलीस्ट हाँ। 8-9 महीने तो देने ही पड़ते हैं। अरे गुप्ता अपने क्लिनिक पे पता है पेशेंट को क्या समझाता है, जैसे एक डॉक्टर होता है क्या समझाता है कि आपको ये प्रॉब्लम है, ये क्योर होगा। गुप्ता ऐसे बैठाता है बुढ़े अंकलों को, बाबूजी एक बुढ़े अंकल आए इसकी दुकान, मतलब दुकान क्या इसकी क्लिनिक में मैं था, तो एक बुढ़े से दुकान ही अंकल बोल बहराम खोर। सुनो तो एक बूढ़े अंकल आए, तो उन्होंने शायद नाटक करा, उसने कहा ये इसका रूट कनाल वगैरह कुछ हो, कह रहे नहीं बेटा अभी का काम कर देना, थोड़ा अभी हो जाए। कह रहे बाबूजी अगर आप घर, गंदे एग्जांपल, बाबूजी अगर आपको अपना घर बनवाना है, घर को रेनोवेशन कराना है, तो आपको उस टाइम के लिए अपने घर से निकल के किसी और के घर में जाना पड़ेगा ना। आप किराए पे घर लेते हो ना जब घर टूट रहा होता है और नया बनता है, तो बाबूजी मैं आपका नया दांत बनने को दे दूंगा, उस टाइम आपके लिए नकली दांत दूसरा यही जुगाड़ है, बाद में आपको असली घर में आना ही पड़ेगा, आप बताओ करवाओगे कि नहीं करवाओगे? करते बेटा कोई दिक्कत की बात Wow. भाई सीनियर सिटीजन डिस्काउंट तो अलग ही होता है। But that's a great pitch. है ना? यहाँ पे ये लाइव चल रहा है ना, तो मतलब ऐसा कुछ है, वरना गुप्ता से ये कहानी अलग से सुनो तो ऐसी गंदी गंदी गाली देके क्या? अरे एक अंकल तो आए, एक बूढ़े अंकल मेरे पता है, जब मैंने नया नया क्लिनिक स्टार्ट किया ना, कह रहा क्या किराया दे रहे हो उस जगह का? कह रहा ना चले ना 2-3 महीने में तो मैं जितना भी दे रहा हूँ उससे 2000 कम में दे दूंगा, इससे बड़ी दुकान दूंगा तुमको। मेन मार्केट में, Wow. मेन मार्केट में। भाई
ये बहुत ही ये रैंडम सवाल जो होते हैं ना, ये बहुत बहुत बढ़िया लगता है जब कुछ खोलो। जब मैंने अपना रेस्टोरेंट खोला था, एक लड़का आके कह रहा है ये गाना कौन सा चल रहा है, मैं कहा चाटा मार दूंगा मैं। ऑर्डर दे तब बताऊंगा, समझ गया। सामान लेना है तो ले। गाना कौन सा है, पराठा किस आटे का है, सब बताऊंगा, पहले ऑर्डर देता। By the way, I want to say Busy's TEDx talk I really liked, man. हाँ मैंने भी देखी, वो काफी अच्छी है। Yeah, वो very दोस्तों honest. वाली चीज। It was nice. थैंक यू। No, best was Bussy just not knowing what to do with his hands. तो वो ऐसे था। समझ ही नहीं आ रहा था बिना माइक के कैसे रिएक्ट करना है। ऊपर से सन्नाटा इतना भयंकर था, और उसमें कुछ ऐसा परमिशन होती है कि टेड ना परमिशन देता है कि 100 ही लोग बिठा सकते हो ऑडिटोरियम में, तो वो काफी खाली था। हाँ, उसमें परमिशन होती है कि 100 से ऊपर का बड़ा इवेंट नहीं करा सकते। बस्ती को TEDx भी सोल्ड आउट करना था, बताओ। कितना हरामी आदमी। मैं वही कह रहा था, इसका तो परमिशन की वजह से 100 लोग आए थे। मेरे को, हमें तो एक बार कोई शो कराने के लिए गया गौरव भाई, कम से कम 1000 लोग तो होंगे ही, कहीं लोग ज्यादा ही ना आ जाए, हमें डर लग रहा है। हमने इतने इनविटेशन भेज दिए, 76 लोग पूरे ऑडिटोरियम में। ये मैं, हर्ष गुजराल, वो लोग गए थे सब करने वो शो। अरे भाई तेरे को लगा हुआ क्लीनिंग स्टाफ आया अभी तो। तेरे को क्या चल रहा है, ऑडियंस आएगा अभी। वो इतने कॉन्फिडेंस से लेके गया ना, वो वाले जो ऑर्गेनाइजर नहीं होते, हमारी तो कपिल शर्मा से रोज की बातचीत है। हाँ। हम तो वो पुणे में जो कपिल शर्मा का नहीं तेरे को गैलरी दिखाने लग जाते, देखो सुनील ग्रोवर के साथ फोटो, फिर देखो मेरी मंदाकिनी के साथ फोटो, देखो। गुप्ता भाई, वो वाला याद है आपको जब एक केरला में जब फ्लड्स आई थी, तो उसके वो पैसे इकट्ठे करने के लिए, चैरिटी करने के लिए एक शो हुआ था जिसमें बोला था बहुत सारे लोग आएंगे, और उसमें 4 ही लोग आए थे, जिसमें 3 ऑर्गेनाइजर थे। ये कौन सा शो था भाई? मैं, आप, हिमांशु भारद्वाज, जिसमें तुमने क्लोज किया था। मैं शुरू में ही बहुत बदतमीजी करके अरे भाई जहाँ ऐसी सब बंद हो गया था। अरे भाई वो रवि गुप्ता भी था उसमें, एक छोटा एक। मैं रवि गुप्ता, आप और हिमांशु भारद्वाज। हाँ, अरे भाई क्या ही था वो। अरे वहां पर काम चालू है, वो अंडर कंस्ट्रक्शन था, वहां पर वो कीले ठुक रही हैं, सनमाइका लगा रहा, बड़े बैठा हुआ है भाई, बीच शो में बड़े बैठा हुआ है पीछे। जैसे ही आप जो करे इधर से ड्रिल चल गई पीछे तो वो भाई बड़ा ही पूरा लगा पड़ा रंदा मारने में। और वो पैसा रेज कर रहा था, कि कितना पैसा रेज कर रहा है, तो इससे तो ले लेता हमसे इतने रुपए, तो हम खुद ही देके चले जाते। बहुत ही खतरनाक भाई। और स्टेज पे वो कह रहा, जब स्टेज जो उसने बनाया था, कह रहा थोड़ा ध्यान से करना कि यहाँ पर अभी भड़े वो काम करके गया, भड़े मींस कारपेंटर, तो वहां पर कीले भी लेना हो। तो भाई हम यूं देख रहे हैं, वो कीले भी लेना चुप गया। और एसी चल ही नहीं रहा वहां पर, वेंट्स लगे हुए हैं, फ्रस्ट्रेटिंग वेंट्स दिख रहे हैं, और एसी नहीं चल रहा है। कह रहा अभी वो चल रहा है, इसका काम चल रहा है। मैंने कहा पूरा बन जाने देते तब करा लेते शो। अरे उससे पहले मैं पीछे एक वॉशरूम था, मैंने गार्ड से पूछा कहाँ है वॉशरूम, वहां चला गया, मैं अंदर गया, किसी ने बाहर से बंद कर दिया। मैं अंदर से बजा, मैंने कहा अरे स्टेज पे जाना है, फिर वो आगे कह रहा है यहाँ पे कोई आता ही नहीं, मैंने इसलिए बंद। भाई बस्सी ने बिल्कुल सही याद दिला। और वो पता है बस्सी, तेरे को याद होगा भाई, वो ऐसी जगह पे था, मतलब वो गलियां नहीं होती जहां ऐसा लगता है कि जब गाड़ी घुसती तो बच्चे भागते पीछे। ऐसी गली में था वो भाई, वो लिटरली ऐसी गली में था, क्योंकि उससे बच्चे गाड़ी अगर पार कर दो सिक्का चला रहे थे। इतना जय भाई, बहुत ही मतलब भाई, उसके वो गाड़ी रोक के वहां पे लड़के रस्सी लगा के सड़क पे गाड़ी रोक के पैसे ले रहे थे गाड़ी जाने के लिए। सीवर नहीं डला होता जिस कॉलोनी में, वो ऐसी कॉलोनी थी भाई। पता नहीं कहाँ गए थे हम। वो पता मुझे याद भी नहीं आ रहा। लपराशर था वो, लपराशर था हमारे, लपराशर था। हाँ, इस हिसाब से इस बंदे को पहले अपने कॉलोनी के लिए पैसे रेज नहीं करने चाहिए थे। पर ये चैरिटी शोज में हमेशा, लाइक आई थिंक बहुत साल पहले कनन गिल और मैंने कुछ शो किया था, और दे हैड पेड अस कॉर्पोरेट रेट्स फॉर अ चैरिटी शो, और टिकट प्राइस था 300 रुपए, एंड द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु शोड अप वाज 250, and the amount that was raised was 1/7 of what they spent on the event. So I'm like, इसका point क्या था? This is like absolutely useless. Sponsors वगैरह से लाते हैं ना पैसा। हाँ, that's what it is. हाँ, तो वो तो ना टिकट उनको जनता भरनी होती है, मेन तो पैसा हम लोग क्या ही देंगे। स्पॉन्सर सीधा टिकट 500,000 की भेजेगा, स्पॉन्सर सीधा 1.5 लाख 2 लाख देके जाएगा, 5 स्पॉन्सर मिलकर उसको। मैंने भी एक चैरिटी शो किया था, तो भाई मेरे को तो पटका पहना दिया उन्होंने। शो के बाद ना पटका पहना दिया एकदम। भाई मेरा फोटो भी अगर दिखा पाता हूँ, पटका पहना रहा मुझे। शिया, तूने नहीं करा कोई चैरिटी शो? मुझे चैरिटी शो में एक जिम खाना में शो किया है, दैट वाज फॉर द ओल्डर ऑडियंसेस। ये वाला वो वाला जिम खाना ना, अंधेरी जू के बीच वाला, द क्लब जू जिम खाना। हाँ, द क्लब नहीं, ये वर्ली का था। अच्छा, तो ये उनके मेंबर्स के लिए शो था, तो वो हमने किया था। तो
उन्होंने बीच बीच में उन्होंने ऐसे बोल दिया था कि ऐसे मत कहिए। ऐसे मत। पर क्या बोला था उसने? नहीं यार, वो कुछ ईव टीजिंग वगैरह वाले ही जोक्स थे उसमें, फिर वो उसमें बूढ़ी ऑडियंस क्या ही बोलेगी, फिर टॉयलेट पे मार दिए तो ये सब कर रहे थे। उन्होंने कहा ऐसे मत बोलिए, तो पुरानी बातें हो चुकी हैं। बेटा हम ये भूल चुके हैं, हमारे को हो गया 30 साल। हमें 30 साल से किसी ने छोड़ा, आपकी याद दिला रहे हो आज। गंदे शोज तो बहुत ही गंदे होते हैं यार। एक मेरा शो था, मेरे हम लोग आई थिंक गुवाहाटी में कोई शो कर रहे थे, एंड द गाय ऑर्गेनाइजर मेरे पास आया, ही सेड्स कि सर मेरा एक दोस्त वो जादू करता है, तो ही वांट्स टू ओपन फॉर यू। आई एम लाइक फक इट, लेट्स डू दिस आल्सो। जादू? तो हाँ, तो आई थिंक कुछ 300 लोग थे, एंड इट्स अ वेरी लॉन्ग रूम, राइट? तो सर 5 मिनट के अंदर ऑडियंस गायब कर देगा। बट दिस इज द पॉइंट। तो शो 7 बजे शुरू होने वाला है, मैजिशियन नहीं है वहां पर, एंड ऑडियंस बैठी हुई है, एंड दे आर वेरी फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज़ दे लाइक हम टाइम पे आए हैं फॉर अ चेंज इन इंडिया, एवरीबॉडी इज ऑन टाइम। तो हम 7:10 तक रुके मैजिशियन के लिए, देन आई हैव टू गो ऑन स्टेज टू इंट्रोड्यूस द मैजिशियन का हिज एक्ट, एंड लिटरली वो गायब हो गया, ही डिडंट कम, एंड देन हिज एक्ट वाज, हिज मैजिक एक्ट वाज ईटिंग अ ट्यूबलाइट। तो वो 12 मिनट के इसके बाद तो स्टेज कोई पे क्या ही खड़े हो गए। कर लेगा यार। अरे बहुत किल किया यार, बिकॉज़ इट्स सच ट्यूबलाइट लो खा- स्टैंडर्ड्स, वी वर ग्रेट। People are like, भाई, fuck, अभी ट्यूबलाइट खा गया, वो तो fuck क्या all ही- your comedies यार, it's like ट्यूबलाइट नहीं खा रहे ना तुम लोग, this is great, it's great quality content। तो यार इसके बाद तो भाई कोई कैसे ही उतरेगा, फॉलो करना मुश्किल हो गया होगा उसके बाद उसको। सही में यार, कोई ट्यूबलाइट खा जाए कोई बात है बच्चों? इसमें जादूगर देख के आप लोग सरप्राइज होते हो आजकल? मेरा सरप्राइज ही बंद हो गया, पता नहीं उनको देख करके। मेरे को तो जादूगर देखे हुए बहुत टाइम हो गया वो जादू ये- मतलब मुझे लगता है कुछ तो करेगा यार, इसकी कुछ तो ट्रिक है पक्का। तो मैं अभी देखता उसने कपूर, अभी उसने करण सिंह मैजिक है ना, वो वीडियो बना रहा था मेरे साथ, हाँ। तो उसने वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद मुझसे बोला, बस्सी भाई अपना नंबर दे दो। मैंने कहा गैस कर ले। क्या बात है। भाई समझ ही उसको नहीं तो- आता। भाई अब बेचारे को तो- लाफ्टर अब लगता चैलेंज है में कुछ इतना तो जलील आता है करा। इन गौरव लोगों को। बताइए। नहीं वो नहीं, गौरव बताइए। वो अलग था करण चौहान, मैं नहीं बता रहा भाई, तू बता। अच्छा वो करण चौहान था? नहीं वो अलग फिर चलो। बताइए जरा लाफ्टर करण- चैलेंज वाली कहानी। नहीं, करण चौहान का क्या है? करण का बताओ। नहीं करण चौहान ये जादू। बस्सी किसकी बात कर रहा था? मैं करण सिंह की कर रहा था। वो अलग है, नहीं वो तो चौहान था, वो जो मोटा सा है उसको भी जानते हैं सब। सब जानते हैं। हाँ, वो हाँ, स्टैंड अप तो वो पूरा भाई वो एकदम वो चूड़ीदार जीन्स पहन के आता है, वो ऊपर जो नीचे से टाइट नहीं होती, घुटने से टाइट जो होती चूड़ीदार टेपर जीन्स कहते हैं उसको, बिल्कुल ही जो स्लिम कर देती है, तो वो पहन के आता है और पूरा फैला हुआ है, मतलब बिल्कुल जैसे पिरामिड होता है ना, ऊपर से पतला और नीचे से बिल्कुल फैला हुआ ऐसा। नीचे तो पूरा ऐसे एकदम अलग ही, उसका सर और धड़ा अलग अलग दिख रहा है। तो वो आया और भाई पूरा गॉगल्स वॉगल्स पहन के पूरा एकदम जैसे पर्पल कोट हैं, पर्पल कलर का पर्पल कोट और पूरा एकदम जादूगर, और पूरे यूं पाशा कितने वो ऐसे फ्रेंच रख रखी है। वो आया तो उसका ऑडिशन हुआ, उसने अपना मैजिक वैजिक करा और थोड़े बहुत जोक्स भी करे कि इसमें मैं आपको बता रहा हूँ तो ये होल्ड कीजिए, वो सब कराया उसने। उसके बाद जजेस ने बोला देखिए वो गौरव क्या बोलता है, ना तो आपसे जादू ना तो आज जादू है ना कॉमेडी हुई। भाई बहुत गंदा बोला था यार, और बदतमीज। तो वो अगले दिन आ गया वापस, कोट पहन के अगले दिन वापस घूम रहा है, मजे से चाय वाय पी रहा है। तो मैं और मैं गौरव बता दूं क्यों, कि इसलिए क्योंकि रियलिटी वालों ने वो शूट नहीं करा था उसका, पहले के जो सीन नहीं होते वो सब शूट नहीं करे थे, तो उसको दोबारा बोला आज तुम्हारा वो शूट है। अब उसके बाद गुप्ता ने उसे इतना गंदा 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 बोला है ना। बताइए गुप्ता क्या बोला तूने? मैंने उसको बोला मेरे को तो लगता कि तू आत्महत्या कर चुका होगा, मैंने कहा था तेरी कॉलोनी में जो है ना पानी जाम हो गया होगा, लोगों ने डंडा मारा होगा, अरे लाश फंसी हुई है इसलिए नल में पानी नहीं आ रहा टंकी। कह रहा तू आज फिर आ गया, तेरे को शर्म नहीं आ रही, तू फिर आ गया आज। पर नहीं मजा डंडा मारा होगा। पानी ब्लॉक हो रहा है, ऊपर पानी भर रहा है रूम्स में, कहीं ब्लॉकेज है, फिर पता चला लाश फंस गई है। अभी जब हम घूमने गए थे ना, तो ये गुप्ता ने घूम घूम के बताई थी ये बात। डंडा लेके घूमा था। अरे इसने लाफ्टर चैलेंज में एक लड़के का नाम रख दिया, तू सनफीस्ट का सूरज लग रहा है, और मम्मी कसम वो आदमी वही लग रहा था। पूरा आप इंटरनेट पे सर्च करो, जुबैर नाम था ना, जुबैर शेख कॉमिक, और पूरा सनफीस्ट का सूरज ही लगता है। जुबैर शेख टाइप करो, अब उसकी शक्ल बिल्कुल ऐसे सनफीस्ट का सूरज। यार ये क्या कंपैरिजन है यार भाई भगवान शक्ल बिल्कुल नहीं, तू देखेगा तो सनफीस्ट का सूरज ही लग रहा है वो।
जुबैर शेख क्या करता है? कॉमेडी करता है क्या? Mimic- हाँ mimicry, जुबैर mimicry, शेख, हाँ mimicry, जुबैर खान, mimicry. जुबैर खान, जुबैर खान है। जुबैर जुबैर शेख है। नहीं नहीं सॉरी, जुबैर शेख है, जुबैर खान नहीं है। जुबैर शेख मिमिक्री। इसमें तो टिकटॉक स्टार आ रहे हैं यार। नहीं, कुछ नहीं आ रहा है इसमें। अरे हेलो, भाई था तो सही जुबैर। कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा, लेट्स डू वन लास्ट थिंग एंड देन लेट्स एंड दिस स्ट्रीम। काफी लोग का डिमांड आया है, सौरभ को बोलो श्रीजा के पास नर्स एग्नेस की कोई स्टोरी है वो शेयर करे। यू ऑलरेडी शेयर्ड अ लॉट ऑफ नर्स एग्नेस You स्टोरीज already ना, अभी shared क्या that बाकी है? story. हाँ, कितना है? मैं तो बहुत बोल दिया। एक तो मुझे बुरा लग रहा है, मैं उनकी थोड़ी सी मजाक उड़ा दिया, जबकि वो बहुत अच्छी थी। मुझे बुरा, मैं क्योंकि एक बार आपके उस पे देखा कि किसी ने कमेंट किया हुआ था, आई एम नर्स। मैं अटकी हुई हूँ या गौरव कपूर अटका हुआ है? कपूर अटका अटका हुआ हुआ है। है, कपूर अटका हुआ है। Okay. तो वो कि मैं उनकी वो सिस्टर इन लॉ या कुछ, आई वाज लाइक शिट, मैंने उनका वो सब बोल दिया था कि बहू की बिचिंग वगैरह करती है। ओह शिट। मेरी थोड़ी वो हो गई। यार ये मेरे साथ भी हुआ, पता है, मैं ऐसी वो सात बहू वाले जो क्रैक कर रहा था, एक प्राइवेट शो था, तो मैंने उसे ऐसे बोल दिया कि ये जो है ना मदर इन लॉ ऐसे बोलती है, टॉन्ट मारती है, तो भाई बहू आ गई, हम तो अपनी मम्मी जी को बहुत प्यार करती हैं, हम तो साथ शॉपिंग जाती ही हूँ भाई, गाल से गाल लगा दी उससे। मैंने कहा अरे यार अब क्या ही बोल लेगा इसके बाद कोई। आई थिंक आपके शोज में ज्यादा छूट होती है ऑडियंस को बोलने के लिए, बस नहीं मैं मना करता हूँ, पता नहीं फिर भी भौंक जाते वो हैं, बोलते रहते हैं बस। बोलते रहते हैं। मैं तो मतलब मैं तो ऐसी नॉर्मली मैंने एक बार स्टार्ट किया, हाय माय नेम इज गौरव गुप्ता। अब तो वो बनिया फैमिली के लिए शो था, एक आंटी बीच में बैठी हुई, तो मैंने कहा हाय माय नेम इज गौरव गुप्ता, आई एम अ बनिया आंटी, सीधा मुसलमानों के बारे में कुछ बोल लो। अरे यार हाँ, अभी कुछ बोलने तो दो। नहीं, वो पहली लाइन भी हो गई, उसको लगा कि पता नहीं क्या ही हो रहा है। चलो गाइस, ये थैंक्स अ प्राइवेट लॉट शो फॉर योर होता है, टाइम। वैसे तो हाँ सही बोल, रहता हाँ बोल, अच्छा बोलो। हाँ, यू हैव वन मोर थिंग टू से? नहीं, नहीं कपूर कहाँ गया? कपूर चला गया क्या? कपूर तो कपूर गायब चला हो गया, गया। उसका नेट चला गया। ओके Superb guys, thanks a lot for your time, really appreciate it. Yeah. And I think I've cracked the format, which is great. I think लाशों पर आ गए हम लोग। anything to promote कुछ हो रहा है तो बता दो प्लीज। गौरव गुप्ता, श्रीजा, बस्सी, कुछ है तो कुछ चालू है? जिंदगी में कुछ नहीं हो रहा है। चल ही नहीं रहा कुछ गुप्ता तेरा तो कुछ शो होगा 100%। मेरा भाई वो तो अब मैं थोड़ी ना बताऊंगा कि प्लीज कम टू माय कॉर्पोरेट शो। गुप्ता भाई उठ गए हो तो आ जाओ यार, अब घर ही आ जाओ। हाँ भाई बनाते हैं, आ जाओ, फोन करते हैं। चलो सर, हम जा रहे हैं। चलो, thanks a lot बस्सी, Bye, thank you bye, श्रीजा, thank you Gaurav, thanks a lot for everybody tuning in. Just a ठीक है couple of बस्सी things भाई। you guys हाँ, can अभी end, आ रहे हैं हम, अभी फोन पे आ रहे हैं। आओ। you guys can end. I'm just going to make a couple of announcements and all. Thanks a lot guys, thank you. Just a few things. Thursday is Aishwarya Mohan Raj and Sonali Thakkar and Pavitra Shetty. Saturday is Lieutenant General Zamiruddin Shah, retired, who's going to talk about his time in the Indian Army. He was involved in the 1971 war. He was the Vice Chancellor of AMU. Lots of interesting things. Sunday is Stupid News with Siddharth Dudeja and Saurav Ghosh and Sumaira Sheikh. And the next week we have, I think, William Dalrymple and Chetan Bhagat. So, Ajao, keep watching, keep supporting all this nonsense. As I said, membership is already on. Jaake dekh lo if you are interested in doing being a member. Lots of fun stuff for members as well. And support this podcast on Insta, Mojo, and PayPal. Thanks a lot, guys. I'll see you guys on Thursday at 11 o'clock. Goodbye.